Hi guys, welcome to my video. Today I came with a new topic, quick sort. Before going to be start my topic, quick sort, I just want to give a small definition about sorting. So what do you mean by sorting? Sorting is a process which help us to arrange the data in ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग हमारा एक तरह का प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डेटास को, यानी कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ डेटास दिया हुआ है, उस लिस्ट ऑफ डेटा को हम एक सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करते हैं. वो सीक्वेंस ऑर्डर चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में करें हम उसे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें. सो इनसाइड द सॉर्टिंग वी आर गोइंग टू बी टॉक क्विक सॉर्ट टुडे. सो क्विक सॉर्ट इज अ पार्ट ऑफ अ sorting process. So now what do you mean by quick sort? क्विक सॉर्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे. सो क्विक सॉर्ट, as per the definition of the quick sort, it says that quick sort is one of the most efficient sorting algorithm. It is one of the most efficient sorting algorithm. Quick sort also based on the principle called divide and conquer method. As we know that merge sort is also based on the same principle called divide and conquer method. So in quick sort algorithm we are going to be split the array into smaller sub array. Dear friends, please try to understand. Inside the quick sort algorithm we are going to be split the array into smaller sub arrays. यानी कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, एक एरे को हम लोग स्प्लिट करते हैं सब एरे में. और क्विक सॉर्ट जो होता है एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसको मोस्ट इफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम माना जाता है. और हम लोग कह सकते हैं कि क्विक सॉर्ट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम कंपेयर टू द ऑल कॉमन sorting algorithm. क्विक सॉर्ट हमारा डिवाइड एंड कनकर प्रिंसिपल या अप्रोच पर काम करता है. सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द क्विक सॉर्ट. नाउ इन क्विक सॉर्ट when we are going to be split the datas or array, then we must select a pivot element. So kindly just we have to give a attention on this below point. So a large array is partitioned into two arrays, one of which hold values smaller than pivot values, based on which the partition is made, and another array hold the values greater than pivot values. That means in quick sort algorithm we are going to be partition an array into two sub arrays
in such a way so that a smaller element will be left side of the pivot value and greater element will be right side of the pivot value. Dear friends, फिर से इस पॉइंट को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। ये कहा जा रहा है कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में जो एरे को हम लोग पार्टीशन करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द पिवट एलिमेंट, तो पिवट एलिमेंट के बाएं साइड में जितने भी लेस एलिमेंट होंगे यानी कि लेस देन द पिवट वैल्यू वो बाएं साइड में आएंगे और जितने भी एलिमेंट उस एरे में ग्रेटर देन पिवट वैल्यू होंगे वो उसके दाएं साइड में आएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मेन पॉइंट in quicksort algorithm. As I told you, quicksort works on the principle called divide and conquer. So we are going to see this, how this concept work in quicksort algorithm. So here the point is given, quicksort uses recursion for sorting subpart. Subpart is nothing but sub arrays. That means one array is split into two sub arrays. So that is called subparts. Now we are going to see on the basis of divide and conquer approach, quicksort algorithm can be explained by using the three basic points. So these are the three basic points we are going to be covered under the quicksort algorithm. So first point we have divide. So in quicksort algorithm we divide the array into subparts, or we can say sub arrays, taking pivot as the partitioning point. The elements smaller than the pivot are placed to the left. Again I am making underline for this. The element smaller than the pivot are placed to the left and element greater than the pivot are placed to the right, as I told you. So in the quicksort algorithm, divide concept is used to divide the array into subparts or sub arrays by using the concept of pivot as a partitioning point, and the elements which are smaller than the pivot are placed left to the pivot, and the elements which are greater than the pivots are placed right to the pivot value. So that is the first point. Second point says that concur. The left and the right subparts, here subparts again I am mentioning here, subpart is nothing but it's a sub array. That means when the array is partitioned, then sub array become. So the same thing. So left and right subparts are again partitioned using by selecting pivot elements for them. Dear friends, please give your attention here. So one array is partitioned into two sub array, and these two sub array again partition into two sub array. That means one partition become two, and these two again in among these two again I am considering only one,
and again from 1 we have to select the pivot element and again partition the sub array into 2 sub array, and this will be goes until we achieved by recursively passing the subparts into algorithm. But that means this process will be continue until we achieve the shorted element. So this is the second point under the quick sort algorithm. And the third point is combine, and the third point is combine. So this point, or we can say this step, does not have much use in quick sort algorithm. But dear friend, if you talk in merge sort, combine step play the most important role in the merge sort, because in this step only elements are sorting and merged. But in case of the quick sort, combine step does not play a significant role, because array is already sorted in the conquer step itself. So I hope it is clear for you. मैं आशा करता हूं कि ये तीनों पॉइंट को आपने समझ पाया होगा। ये 3 बेसिक पॉइंट से हमारे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर में हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट डिवाइड है, सेकेंड पॉइंट हमारा कंकर है, एंड द थर्ड पॉइंट हमारा कंबाइन है। सो डिवाइड पॉइंट, डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, एक एरे को हम लोग पार्टीशन करते हैं 2 सब एरे में, और पार्टीशन जब हम लोग करते हैं तो पिवोट एलिमेंट हमारा बीच में होता है, उसके बाएं साइड में जितने भी पिवोट एलिमेंट से छोटे होते हैं वो रखा जाता है, और दाएं साइड में जितने भी पिवोट एलिमेंट से बड़ा होता है उसको हम लोग दाएं साइड में रखते हैं। ये हमारा डिवाइड स्टेप में होता है। कंकर स्टेप में ये कहता है कि लेफ्ट एंड राइट जो सब एरे मेरा बना उसको फिर से हम लोग पार्टीशन करते हैं, और फिर से पार्टीशन करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द पिवोट, एंड दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू अंटिल द एलिमेंट्स गेट शॉर्टेड। यानी कि जब तक कि एलिमेंट्स हमारा शॉर्टेड नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। नाउ फॉर अस वी हैव अ क्वेश्चन, हाउ टू सेलेक्ट पिवोट, यानी कि पिवोट एलिमेंट को हम लोग कैसे सेलेक्ट करें, दैट इज आवर क्वेश्चन मार्क। सो हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द पिवोट एलिमेंट। सो लेट अस कंसिडर एन एरे। हम लोग मान के चलिए हमारे पास एक एरे है जिसका नाम हमने दे दिया एरे ऑफ n, जिसमें एलिमेंट हमारे n एलिमेंट है उस एरे में। अब हमको इस एरे के लिए हमें पिवोट एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। सो वी हैव अ 4 पॉसिबिलिटी। हाउ मेनी पॉसिबिलिटी वी हैव? वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज। हमारे पास कुल मिलाकर 4 पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं पिवोट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। तो पहला जो हमारे पास में है वो, सो वी हैव अ 4 पॉसिबिलिटीज। सो दिस 4 पॉसिबिलिटी वी आर गोइंग टू बी सी। So first, what is the first possibility to select the pivot element? We can select first element from the array. We can select first element from the array. So हम लोग पहला एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। So हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है, उसमें हमने पहला पॉसिबिलिटी को देखा कि we can select first element as a pivot element इन अ एरे, यानी कि हम लोग पहला एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पहला पॉसिबिलिटी हमारे पास में है। सेकेंड पॉसिबिलिटी कहता है हमारे पास में कि लास्ट एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट करें, यानी कि एरे का लास्ट एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दूसरा पॉसिबिलिटी हमारे पास में है। थर्ड पॉसिबिलिटी कहता है कि वी कैन सेलेक्ट एनी एलिमेंट रैंडमली फ्रॉम द एरे एज अ पिवोट एलिमेंट।
And the last possibilities we have to select middle. We have to select middle element as a pivot element from the array. So these are the four basic possibilities by which we are able to be select the pivot elements. So friends, again I am repeating you, in a quick sort, pivot element play an important role for partitioning the array, but we have some question within us how to select the pivot element. So we have a four possibilities. We can select first element of an array as a pivot element. This is the first possibility. Second possibility, we have to select last element as the pivot element from the array. And third, randomly we can select from the array. यानी कि कोई भी randomly हम लोग कोई भी element को हम लोग select कर सकते हैं. And the last says that we can select median, that means middle. That means we can select middle as the pivot element. So these are the four possible way to select the element from the array as a pivot element. Now once we can select the element as a pivot element, then we have to go for the next step, that is called partitioning and placing the pivot element. So in this case we selected last element as the pivot element. We selected last element as the pivot element. Now once we selected the last element as the pivot element, then we have to rearrange the rest of the element in an array. What? Once we selected the pivot element from the array, then what we are going to do the next? We have to rearrange rest of the array's element by using the two basic points. By using these two basic points. What are the two basic points here? Same points already I discussed. First point says that all the element placed left to the pivot which are equal or less. कह रहा है कि सारे एलिमेंट जो पिवोट से कम होगा या पिवोट के बराबर होंगे वो पिवट एलिमेंट से बाएं साइड में जाएंगे. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट उस एरे में होंगे, जो एलिमेंट पिवट वैल्यू से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, वो कहाँ जाएंगे? राइट साइड में जाएंगे. कहाँ पर उसको अरेंज करेंगे? राइट में अरेंज करेंगे. सो दिस आर द टू बेसिक पॉइंट्स we have to follow once we selected the pivot element and going for partitioning and placement of the pivot element. Let us consider one example. I hope this example will help you to clear above concepts. मैं इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको जो ऊपर में जो हम लोग पिवोट एलिमेंट का सिलेक्शन करना, फिर उसको एरे को पार्टीशनिंग करना कैसे हम लोग कर रहे थे, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे. सो हम लोग के पास एक एरे है जिसमें एलिमेंट दिए गए हैं. क्या है एलिमेंट? 52 है, 37 है, 63, 14, 17, 8, 6, 25. सो हमने क्या किया? इसमें से हमने क्या किया? पिवोट एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने सेलेक्ट किया 25 को. हमने क्या किया? सेलेक्ट किया 25 को. सो वी सेलेक्टेड 25 एज ए पिवोट एलिमेंट. व्हाई? बिकॉज इट्स अ लास्ट एलिमेंट इन द एरे. अगेन सिलेक्शन हमारा चार तरह से हम लोग कर सकते हैं. उसने हमने सेकेंड पॉइंट को हमने कंसिडर किया, जो आपको हमने 4 पॉइंट बताया था उसमें से सेकेंड पॉइंट को हमने कंसिडर किया. यानी कि हमने लास्ट वाले
एलिमेंट को हमने पिवोट एलिमेंट के रूप में सेलेक्ट किया है। जब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस प्रोसेस वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पार्टीशनिंग एंड प्लेसमेंट वी आर गोइंग टू डू। सो पार्टीशनिंग और प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट होगी एलिमेंट्स का। सो हमने 25 को ऐसे रखना है कि उसके बाएं साइड में सारे छोटा एलिमेंट उससे आ जाए और दाएं साइड में सारे बड़ा एलिमेंट उससे आ जाए। सो हमने यहाँ पर आपको करने का कोशिश किया है, जिसके द्वारा हमने ये बाएं साइड हो गया, ये हमारा दाएं साइड में हो गया। तो 25 I placed and left of the 25 all elements are smaller than 25 and right of the 25 all elements are greater than 25. As per the concept of the quick sort, I selected and I divided. So that means अभी क्या हमारा इस array को, that means this array is splitted into two sub array. These are the two sub array by using the concept of the pivot element. Dear friends, please give your attention here. यहाँ पर हमारा पास एक शुरू में जो हमारा एरे है जो ए है, शुरू में जो हमने एरे लिया है वो हमारा ए एरे है। इस एरे से हमने पिवोट एलिमेंट का सिलेक्शन किया, वो मैंने सिलेक्शन किया 25 को। जब हमारा सिलेक्शन हो गया तो इस एरे का हमने पार्टीशनिंग किया। जब हमने पार्टीशनिंग किया तो हमारे पास दो सब एरे मिला, समझे, दो सब एरे मिला। जो एक हमारा एरे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 6, 8, 17, 14, 25 तक चलेगा, और दूसरा हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 63, 37, 52 चलेगा हमारा। यानी कि वन एरे स्प्लिटेड इनटू टू सब एरे by using the concept of the pivot element. So ये हमारा फर्स्ट फेज का है। ये फर्स्ट फेज में हम ए स्प्लिट करके जितने भी स्मॉलर एलिमेंट थे उसको हमने लेफ्ट साइड में रखा और जितने भी लार्जर एलिमेंट थे उसको हमने राइट साइड में रखा। दैट इज द फर्स्ट पास। सेकेंड पास में हमारा क्या होगा, इसमें जो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं आपको, सेकेंड पास में हमारा क्या होगा कि ये जो दो सब एरे बना है यहाँ पर, these two sub array again splitting, going to be split. ये दो सब एरे को फिर से हम सब स्प्लिट करेंगे। हाउ, बाय अगेन सेलेक्टिंग द पिवोट एलिमेंट among this। समझ रहे हैं, यानी कि ये जो दो मेरा सब एरे बना, ये दो सब एरे जो मेरा हुआ, ये दो सब एरे को फिर से हम लोग स्प्लिट करेंगे और उसको स्प्लिट करने के लिए फिर से हमें पाइवट एलिमेंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा और वो सिलेक्शन के लिए फिर से हमने इसी एलिमेंट से लेंगे। यानी कि हम इसी एरे में से फिर एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, पाइवट एलिमेंट को। तो इसमें से हमने पहला वाला में से हमने किसको सेलेक्ट किया, पाइवट एलिमेंट एज ए 14 हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरे वाले में से हमने 52 सेलेक्ट कर लिया। जब हम 14 सेलेक्ट कर लेंगे पहला जो सब एरे उसमें से, तो 14 हमने सेलेक्ट किया, तो 14 को हम फिर क्या पार्टीशनिंग करेंगे। यहाँ पर जब हम लोग पार्टीशनिंग करेंगे इस केस में, यानी कि सेकेंड पास हम लोग चल रहे हैं, फर्स्ट पास में तो हो गया, सेकेंड पास में हम इस एरे सब एरे से 14 एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया है। जब हमने 14 को सिलेक्ट किया ए पाइवट एलिमेंट, तो इसका फिर से हमारा पार्टीशनिंग हुआ। जब पार्टीशनिंग करेंगे तो हमारा इस तरह से ये हो जाएगा, यानी कि 6, 8, 14, 17। समझे, ये हमारा फाइनल ए आउटपुट मेरा आ जाएगा। अब आप देखिए ये सॉर्टेड हुआ कि नहीं हुआ, सॉर्टेड हो गया ना, 6, 8, 14, 17। ठीक है, ये हमारा इस तरह से इसका पार्टीशनिंग हो, मतलब पार्टीशनिंग करेंगे। आप पार्टीशनिंग के बाद ये सब एरे मेरा ऑलरेडी शॉर्टेड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इस सब एरे का। इसमें हमने 52 को हमने क्या किया है, पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट किया। तो 52 को हमने जब सेलेक्ट किया तो हमको इसको कहाँ पर प्लेस करेंगे, यानी कि 52 के लेफ्ट में क्या होना चाहिए, सारा एलिमेंट
लेस होना चाहिए। आप 52 के राइट में क्या होना चाहिए, सारा एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 37, 52 एंड 63। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। सो हमारा क्या होगा, 37 हो जाएगा, 52 को हमने प्लेस किया बिटवीन में, और हमारा 63 हो जाएगा। तो ए बी एलिमेंट हमारा सॉर्टेड हुआ, यस सॉर्टेड हो गया, यानी कि दोनों सब एरे हमारा सॉर्टेड हो गया। एंड दिस स्टेप ओनली कम्स अंडर कंक्यूर मेथड, दैट मीन्स कंक्यूर स्टेप्स ओनली, यानी कि ये जो पार्टीशनिंग और ये जो सॉर्टिंग जो होता है हमारा कंक्यूर स्टेप्स में ही कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से हमारा फाइनली जो दो सब एरे हमारा सॉर्टेड हो गया, एंड द रिजल्ट ऑफ द टू सब एरे बिकम द रिजल्ट ऑफ द फाइनल एरे। सो ये दोनों को अगर हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे तो फाइनल हमारा एलिमेंट का सॉर्टिंग हो जाएगा। सो दैट इज आवर डिजायर रिजल्ट। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। सो इस तरह से हम फिर से एक बार इसको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक एरे है, उस एरे में से सबसे पहले हमने पाइवट एलिमेंट का सिलेक्शन करते हैं। जब हमें पाइवट एलिमेंट का सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी हमने पार्टीशनिंग की बात करते हैं और प्लेसमेंट की बात करते हैं कि कहाँ पर उसको वो पाइवट एलिमेंट को रखना है और कैसे उसकी हम लोग पार्टीशनिंग करनी है। तो फर्स्ट पास में हमने वही देखा कि हमने उसको ऐसे जगह पर रखा जिसके लेफ्ट साइड में सारा स्मॉल एलिमेंट है और राइट साइड में सारा ग्रेटर एलिमेंट है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पास ओवर हो गया। सेकेंड पास क्या हो गया, यहाँ पर अब एक एरे को दो सब एरे में हमने स्प्लिट किया। अब ये दो सब एरे, इस सेकेंड पास की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर बात है, ये दो सब एरे को फिर से हम एक एक करके ट्रीट करेंगे, अलग अलग करके ट्रीट करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो हमारा ए जो हुआ, इसमें से हम फिर 14 को हम क्या करेंगे, पाइवट एलिमेंट ले लेंगे और फिर से उसको हम लोग पार्टीशनिंग करेंगे और प्लेसमेंट करेंगे। जब 14 को हमने पाइवट सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसके हमने पार्टीशनिंग करने लगे और प्लेसमेंट करने लगे, तो हमने देखा उसके लेफ्ट में सारे स्मॉलर होंगे, राइट में सारे बिगर होंगे। तो हमने 6, 8, 14, 17 करके हमने ये पूरा हमारा एरे ही सॉर्टेड हो गया। ठीक उसी तरह से जब हम लोग इसको पार्टीशनिंग, इसमें से हम लोग इस सब एरे की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग इस सब एरे में से हम लोग एक ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा पाइवट एलिमेंट हो। तो हमने 52 को सिलेक्ट कर लिया। अब 52 को हम लोग पार्टीशनिंग करेंगे इसको लेकर के। तो हमने लेफ्ट में 52 का स्मॉलर होना चाहिए, राइट में 52 का ग्रेटर होना चाहिए। सो 37 हमारा लेफ्ट में हो जाएगा, 63 हमारा राइट में हो जाएगा, यानी कि ये भी सब एरे है जो हमारा शॉर्टेड हो जाएगा। एंड फाइनली द रिजल्ट, दैट मीन्स द रिजल्ट ऑफ द sub-array, the result of the sub-arrays become the result of the final array, and that is our desired result. So दोनों हमारा sorted होकर के हमारा final array का result मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे how quicksort works, that means एक कैसे कार्य करता है। So dear friends, we have some steps, we have to keep these steps in our mind before when we are going to be write the algorithm of a quick sort. So जब हम लोग एल्गोरिथम को लिखने जाएंगे तब ये पॉइंट्स को हमें अपने ध्यान में रखेंगे। सो पहला स्टेप क्या कहता है, आफ्टर सेलेक्टिंग एन एलिमेंट एज अ पिवोट विच इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, इन आवर केस वी डिवाइड द एरे फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहे हैं। पहला स्टेप ये कह रहा है कि जब हम लोग पिवोट एलिमेंट का सिलेक्शन कर लेते हैं, जो पिवोट एलिमेंट हमारा क्या होता है, लास्ट एलिमेंट होता है एरे का, फिर उसको लेकर हम लोग क्या करते हैं, एरे को पहले बार में हम उसको क्या करते हैं,
डिवाइड करते हैं, पहला टाइम इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। सेकेंड स्टेप ये कहता है कि इस डिवीजन को हम लोग पार्टीशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टीशनिंग कहते हैं। तो इस पार्टीशनिंग जो होता है, इट्स नॉट अ सिंपल ब्रेकिंग ऑफ एन एरे। हम लोग डायरेक्ट सिंपली उसको हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं। यहां पर समझिएगा आप कि एक एरे को डायरेक्टली हम लोग दो भाग में नहीं बांटते हैं। बांटने के पीछे हमारा एक कॉन्सेप्ट लगा रहता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग पार्टीशनिंग जब करते हैं तो पिवोट एलिमेंट का लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे दैट इज स्मॉलर देन द पिवोट एलिमेंट, एंड द एलिमेंट विच कम्स राइट साइड टू द पिवोट that element should be greater than the pivot element. So एक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है whenever we are going to be partitioning the array in quicksort. अब क्या कहता है स्टेप थर्ड? ये कहता है कि pivot element will be the first shorted position. That means pivot element will be its first final shorted position. दैट मीन्स वो हमारा फाइनल शॉर्टेड पोजीशन होगा। फोर्थ स्टेप ये कहता है द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट एंड द राइट मे नॉट बी शॉर्टेड। यस, कह रहा है कि पिवोट एलिमेंट का लेफ्ट वाला, फोर्थ स्टेप ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। फोर्थ स्टेप कह रहा है कि लेफ्ट और राइट एलिमेंट्स जो होंगे पिवोट का वो शॉर्टेड हो सकते हैं, मे नॉट बी शॉर्टेड। अब इसी एग्जाम्पल में हमने देखा ये क्या हमारा लेफ्ट में है, ये क्या हमारा राइट में है, ये क्या दोनों सॉर्टेड है? नहीं, सॉर्टेड नहीं है। सो यही फोर्थ पॉइंट कह रहा है द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट एंड द राइट मे नॉट बी सॉर्टेड। यस, इट्स ट्रू, वी ऑलरेडी हैव सीन बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नाउ फिफ्थ स्टेप ये कहता है देन वी पिक सब एरे। ऑलरेडी वी हैव पिक्ड हियर दिस टू सब एरे। सो कह रहा है कि then we pick sub array, element on the left of the pivot and element on the right of the pivot, and we perform partitioning on them by choosing a pivot in the sub array. इस बात को समझ पाए आप? फिफ्थ पॉइंट को कह रहा है कि एक एरे से मेरा जब दो सब, तो हमने फिफ्थ स्टेप में ये देख रहे थे कि when we have a sub array, तो हम फिर उसे क्या करेंगे? फिर उसे भी हम, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश किए थे, जब हमारा ये दो सब एरे हो जाता है तो यहाँ पर जो दो सब एरे मेरा बना, तो फिफ्थ स्टेप में हम लोग फिर से क्या करेंगे? ये दोनों सब एरे से हम लोग फिर से क्या करेंगे? इसमें हम लोग पिवट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फिफ्थ स्टेप ये कहता है कि देन वी पिक सब एरे, हमने वो दो सब एरे को पिक किया, एलिमेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द पिवट एंड द एलिमेंट ऑन द राइट ऑफ द पिवट, देन वी परफॉर्म पार्टीशनिंग ऑन देम बाय चूजिंग द पिवट इन द सब एरे। यानी कि फिफ्थ स्टेप ये कहता है कि जब हमारा सब एरे बन गया तो उस सब एरे को फिर से हम लोग पार्टीशनिंग करेंगे, तो उस सब एरे में से ही हम लोग पिवट एलिमेंट का हम लोग सिलेक्शन करेंगे, और फिर हम लोग जैसे हमने पहले स्टेप में देखा, फिर से हम लोग उसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे। तो ये आपका 5 स्टेप था जिसके द्वारा हम आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखने के तरीका हमने आपके सामने बताया। अब हम लोग डायरेक्टली इसका देखेंगे कि ये कैसे हमारा किस तरह से विद हेल्प ऑफ द अदर एग्जाम्पल हम कोशिश करेंगे कि दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश करेंगे कि क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमने एक एरे ले लिया, जिस एरे में हमारा एलिमेंट जो है वो दिया गया है ये, और इस एरे में हमने पिवट एलिमेंट का सिलेक्शन किया, वो हमारा 27 है। ये क्या है? हमारा 27 है। जब हमने पिवट एलिमेंट का यहाँ पर सिलेक्शन हमने कर लिया, तो अब हम इसको क्या करेंगे? पार्टीशनिंग करेंगे इस एरे का। तो एरे का जब हमने पार्टीशनिंग किया तो हमारा इस तरह का हमारा फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये दो सब मेरा एरे बन गया। तो एक एरे कहाँ से 23, 17, 27 तक चलेगा, दूसरा सब एरे हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 57,
34, 89, 65, 29 तक चलेगा हमारा ये। तो ये हमारा सेकेंड सब एरे हो जाएगा। अब हमारा देखिए ये जो दोनों मिल गया, अब इस दोनों में से 27 तो ऑलरेडी मेरा सॉर्टेड एलिमेंट है, तो प्रॉपर पोजीशन पर है, तो हमने उसको हटा करके यहाँ पर डायरेक्ट हम रिप्रेजेंट करने का कोशिश किए ये दो सब एरे को। अब हमारा 23 है और 17 है, ये पहला सब एरे है, तो ये दो एलिमेंट है, तो हम लोग इजिली ही इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। एक हम शॉर्टिंग फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लोग लिख देंगे, यानी कि 17 और 23 हमने इसको अरेंज कर दिया, यानी कि ये हमारा सब एरे शॉर्टेड हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या बचा, ये हमारा सब एरे बचा। अब इस पर हम काम करेंगे। अब देखिए ये हमारा सॉर्टेड हो गया, और अब इस पर हमने जब काम करना शुरू किए तो ये हमारे पास ये हमारा एरे मिला। इसमें हम लोग सबसे पहले पिवट एलिमेंट का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। जब हम लोग सिलेक्शन किए तो हमारे पास में 29 आया। अब 29 जब हमने पिवट एलिमेंट का सिलेक्शन कर चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फिर से हम क्या करेंगे, पार्टीशनिंग करेंगे इस एरे का। तो डियर फ्रेंड, ऑलरेडी आई टोल्ड यू when we are going to do the partitioning in quick sort algorithm, then we have to keep 2 points in our mind. The first, left side of the partitioning, left side of the pivot element, all the smaller elements should be there, and right side of the pivot element, all the greater elements should be there. अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर काम करेंगे हम लोग। अब हमने क्या किया, 29 है, तो 29 इस एरे में सबसे स्मॉलर एलिमेंट है, तो ये हमने 29 को फर्स्ट पोजीशन पर हमने लिख दिया। क्या किया हमने, पहले पोजीशन पर ये हमारा आ गया ये। अब हमारे पास 34 है, 89 है, 65 है, 57 है। अब हमारे पास में क्या आएगा, ये आ गया, समझे। अब इसको भी हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको पार्टीशनिंग करेंगे, और 57 को हम फिर से हम इसको लेंगे, और फाइनली जो हमारा जो होगा, जो ऑर्डर में हम सॉर्टेड करेंगे, ये हमारा ए फॉर्म में आएगा, ये दो एरे का। और जो कह सकते हैं हम लोग, इस तरह से हमारा दो रिजल्ट जो निकलेगी क्विक सॉर्ट के अनुसार इस एरे का, जो हमारा ये फाइनल, दिस विद द रिजल्ट। नाउ सी द एरे इज सॉर्टेड और नॉट, यस। 17, 23, 27, 29, 34, 57, 65, 89. So this is the final sorted array in quick sort. अब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी, क्विक सॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की इफिशिएंसी को पता करना है तो हम लोग दो पैरामीटर से हम लोग पता करते हैं। यानी कि सॉर्टिंग इफिशिएंसी को अगर हमें मेजर करना है, देन वी हैव टू मेजर बाय यूजिंग द टू बेसिक steps. First, we have to measure the time. That means by using the sorting algorithm, how much time is required to perform the operation. Second point ये कहता है how much memory space is required by particular sorting algorithm to perform the operation. यानी कि time and space, these are the two parameter by which we are able to measure the efficiency of any sorting algorithm. So हमारे पास क्विक सॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर में हम लोग देख रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इनसाइड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव 3 केसेस, वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड द बेस्ट केस। सो वर्स्ट केस जो होती है क्विक सॉर्ट का, O(n)² होता है और O(n)² होता है, और बेस्ट केस जो होता है क्विक सॉर्ट का, O(n)log(n) होता है, एंड विच इज सिमिलर टू द, एंड बोथ आर सेम, मतलब बेस्ट केस और एवरेज केस दोनों ही क्विक सॉर्ट का सेम होता है, एंड दैट इज इक्वल टू O(n)log(n), O(n)log(n), यानी कि दोनों ही यहाँ पर सेम हो जाता है। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वर्स्ट केस केवल डिफर करता है क्विक सॉर्ट का, लेकिन
best case or average case both are same in the quick sort, and that is equal to the O of n log n, दोनों में चलेगा, O of n log n। फिर हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है क्विक सॉर्ट का O log n होता है। सो दीज आर द टू बेसिक पैरामीटर्स by which we are able to measure the efficiency of any sorting algorithm. I hope it is clear for you. अब हम लोग क्विक सॉर्ट की एप्लीकेशन की बात करेंगे। So we have, there are a lot of applications of a quick sort, but here I am only considering the three. So these are the three basic application of a quick sort. So first application, quick sort is implemented when the programming language is good for recursion. That means if the programming language is good for the recursion, then we are going to be implement the quick sort. So recursion is one of the concept in C programming language. So when we have a time complexity and space complexity is two basic parameter, if you want to be concern these two parameter, then is it better to be implement the quick sort, because quick sort is one of the fastest sorting algorithm compared to all the common sorting algorithm. So कह रहा है यहाँ पर कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि टाइम को हमको केयर करके चलना है या स्पेस को केयर करके चलना है हमें, तो उस केस में हमें क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को ही इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा अच्छा है। सो ये तीन एप्लीकेशंस हैं। अब हम लोग देखेंगे क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट का की डिफरेंस। हम लोग जानते हैं क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट बोथ आर वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल कॉल्ड डिवाइड एंड कंकर। सो दोनों ही एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो हम अभी दोनों के बीच में क्या की डिफरेंस है, तो दोनों की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं वी हैव अ 7 पॉइंट्स टू नो द की डिफरेंस बिटवीन द क्विक सॉर्ट एंड द मर्ज सॉर्ट। हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं, हम लोग सातों पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सो पहला पॉइंट ये कहता है पहला पॉइंट ये कहता है कि इन मर्ज सॉर्ट एरेज आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। कहता है कि मर्ज सॉर्ट में एरे को हम लोग 2 इक्वल यानी 2 हाफ्स में यानी कि इक्वल हाफ्स में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। बट इन केस ऑफ द क्विक सॉर्ट देयर इज नो कंपल्सन लाइक दिस, देयर इज नो कंपल्सन लाइक दिस। सो डियर फ्रेंड्स, अगेन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सेज दैट इन मर्ज सॉर्ट arrays are divided into 2 halves equally, but in case of a quick sort array can be divided equally or cannot. That means there is no compulsion for dividing the array into 2 equal parts. So that is the first point. Second point says that the worst case complexity of the quick sort is n O of n square, and in merge sort average and the worst case both are same, and that is equal to the O into O of n log n। कह रहा है यहाँ पर कि मर्ज सॉर्ट का जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है O ऑफ n log n कहलाता है, लेकिन क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है O ऑफ n स्क्वायर के बराबर होता है। एक कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है इसमें मर्ज सॉर्ट कैन ऑपरेट वेल ऑन एनी टाइप ऑफ डेटा सेट वेयर इट इज लार्ज और स्मॉल। ऑन द अदर हैंड quick sort cannot work well with large data set. So third point, it's clear here, merge sort
can effectively work with the large or small data set. It doesn't matter whether the data set is large or small. So merge sort can work perfectly. But in case of the quick sort, data set should be small. That means quick sort cannot work with the large data sets. So this is the third point. Fourth point says that क्विक सॉर्ट इज फास्टर देन मर्ज सॉर्ट. ऑफ कोर्स वो होगा ही. क्यों? क्योंकि क्विक सॉर्ट मोस्टली वर्क विद द स्मॉल डेटा सेट्स. फिफ्थ पॉइंट कहता है मर्ज सॉर्ट रिक्वायर एडिशनल मेमोरी स्पेस वेयर एज क्विक सॉर्ट डज नॉट रिक्वायर एडिशनल मेमोरी स्पेस. सो फिफ्थ पॉइंट ये जो कह रहा है यहां पर उस चीज को समझिएगा. फिफ्थ पॉइंट, merge sort require additional memory space because merge sort are external storage method. कह रहे हैं ना, merge sort में एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्विक सॉर्ट में एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती है. Sixth point is one of the important point here. Merge sort is more efficient than quick sort. Compared to the quick sort, merge sort is more efficient and effective. And the last point says that quick sort is internal sorting method and merge sort is external sorting method. So that only merge sort required extra memory to perform the operation, whereas quick sort does not require any extra memory to perform the sorting operation. So these are the 7 basic difference between the quick sort and merge sort. I hope it is clear for you. सो ये 7 बेसिक पॉइंट्स जो है मैंने आपके सामने रखा है. दोनों ही क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है, लेकिन दोनों के बीच में मुख्य अंतर क्या है वो ये 7 पॉइंट के द्वारा मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है. सो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया. फर्स्ट आई कवर द डेफिनेशन ऑफ द क्विक सॉर्ट. I explained clearly what is quick sort, on what principle the quick sort is working. Then, as I told you, quick sort work on the divide and conquer principle. Then how this principle work in quick sort algorithm. So we have a 3 points. First point, I told you the array is divided into 2 sub array by selecting the pivot element. Second point, in the second point, sub array again partition into sub array by selecting the pivot element from them itself, and finally the array will be element will be sorted out. Third step यानी कि third point here is not more effective or not more significant in the quick sort. Then I cover how to select the pivot element here. We have 4 possibilities to select the pivot element. So these 4 all possibilities I discussed. Then with the help of example I try to be explain. Once you select the pivot element, what we have to do. Then positioning and partitioning I covered. Where to position and how to partition, that both I covered here. And then with the help of example I clear all the concepts. Then finally I touch with the steps how to write the algorithm of a quick sort. So we have 5 steps here.
So with these 5 steps, I try to explain how to write the algorithm of quicksort. I also discussed one more example to make your concept more clear. Then finally, I touched the complexity part. Because these are the 2 parameters, time complexity and space complexity, by which we are able to measure the efficiency of any sorting algorithms. So these are the 2 parameters. So टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग ये देखा कि बेस्ट केस और एवरेज केस क्विक सॉर्ट का दोनों सेम होता है, एंड दैट इज इक्वल टू ओ एन लॉग एन के बराबर होता है, ओ एन लॉग एन के बराबर होता है. इसमें वर्स्ट केस केवल डिफर करता है, एंड दैट इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर के बराबर होता है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने देखा क्विक सॉर्ट का, जो ओ लॉग एन के बराबर होता है. फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को टच किया. सो आई डिडंट डिस्कस मोर ऑन द application of a quick sort, just I gave the brief introduction where to we implement the quick sort, and finally I cover the key difference between quick sort and merge sort, because this is one of the important question for us, क्योंकि दोनों ही एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है, इसलिए दोनों को समझना बहुत जरूरी है कि दोनों में फिर अंतर क्या है. तो हमने 7 पॉइंट के थ्रू, यानी कि 7 पॉइंट्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करने का यहाँ पर कोशिश किए, और मैंने एक्सप्लेन किया एक प्रत्येक पॉइंट्स को मैंने क्लियरली कवर किया और एक्सप्लेन किया है. बाय दिस 7 पॉइंट्स आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू क्लियरली हाउ द क्विक सॉर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मर्ज सॉर्ट. सो सम एरिया, किसी पॉइंट में क्विक सॉर्ट इज बेटर, बट किसी पॉइंट में मर्ज सॉर्ट इज बेटर. सो एक पॉइंट हमने यहाँ पर ये देखा कि मर्ज सॉर्ट इज मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम देन द क्विक सॉर्ट, लेकिन दूसरे पॉइंट में हमने ये देखा यहाँ पर कि क्विक सॉर्ट इज फास्टर देन द मर्ज सॉर्ट. से 2 पॉइंट था जो हमें आपके सामने हमने फोकस किया है, एंड लास्ट हमने ये बताया आपको कि क्विक सॉर्ट में एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो इंटरनल सॉर्टिंग मेथड होता है, लेकिन मर्ज सॉर्ट में एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो एक्सटर्नल में सॉर्टिंग मेथड पर काम करता है. क्विक सॉर्ट इंटरनल पर काम करता है, मर्ज सॉर्ट एक्सटर्नल पर काम करता है. आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू. थैंक यू.